Good morning, students. I'm Shikha Mishra from Samdariya School of Education. As we all know, our whole country, as well as this planet, is going through a huge loss of lives due to coronavirus. Every country is giving their best effort to save environment and nation. In this outbreak, students are also going through great loss in studies. Hence, Samdariya School of Education is giving their best efforts for online learning programs to the student. Thus again, myself Shikha Mishra, I'm going to teach you social studies of class 8. So our first chapter is modern Indian history. What is modern Indian history? Before going to the topic of modern Indian history, we must know about what is history. The series of events or acts that is connected with society or environment or somebody in our past is history. We can say that it is a written description of the past event. Hence, going through Indian modern history, we must know in a brief what is the meaning of ancient history, medieval history, as well as modern history. So first of all, we should know about our ancient history. Here it is written, how do we periodize? So it is very important term. Why do we try and divide history into different periods? We divide history into different periods on the basis of something which has profound impact on the way of life we live. So ancient and medieval history. Ancient history from earliest recording events to the end of the Western Roman Empire in AD 476, or a period of time before Turkeys came to India. And what about medieval history? The Middle Age lasted from 5th to 15th century is called Middle Age. Now we will going to read about modern Indian history. Before going to the modern Indian history, first of all, we must know what is the meaning of modern Indian history and who founded this modern Indian history. Or you can say that who is the founder of the modern Indian history or father of the modern Indian history. Father of the modern Indian history is Dr. B.R. Ambedkar. We should remember this thing, it is very important. Who is the father of modern Indian history? Father of modern Indian history is Dr. B.R. Ambedkar. Now, I will going to tell you the changes in Indian history after coming of the British in India. During the late 16th and 17th century, the European trading companies in India competed with each other. By the last quarter of the 18th century, the English has outdone all others and established themselves as a dominant power here. The British administered India for about revolutionary period of about in the social and political economic life of the country. Once the British set their solitary foot here, what happened? Then they started exploiting the handicraft industries as well as commercial industries. Here in this point it is written, the British rule and the Jamandari system changed the peasant artisan ruined the handicraft industry in India. तो क्या हुआ इनकी एंट्री से? इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ? जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्रीज थी उन्हें इफेक्ट हुआ. हैंस द चेंजेस इन इंडियन हिस्ट्री, इसमें चेंजेस क्या क्या है? बहुत पॉजिटिव चेंज थे और नेगेटिव चेंज तो जाहिर सी बात थे ही. पॉजिटिव चेंज क्या था? न्यू एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ब्रिटिश रूल वॉज इंट्रोड्यूस. इस एजुकेशन सिस्टम से क्या हुआ? हमारे यहाँ वुमेंस की एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे ताकि सभी लोग, सारी वुमेंस को इक्वल ट्रीट किया जाए और उन्हें भी पढ़ाया जाए. इसके साथ साथ क्या हुआ था? द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड अर्बनाइजेशन इन इंडिया ऑन अ मॉडल लाइन. न्यू कॉलोनियल सिटीज़ लाइक बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास स्टार्टेड टू डेवलप. कॉलोनियल सिटीज़ भी हमारे यहाँ पे उस समय डेवलप हुई थी. आपको इस पॉइंट में मैंने ऑलरेडी बताया कि ज़मींदारी सिस्टम चेंज हुआ था और हमारी जो कमर्शियल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी एकदम से तबाह हो गई थी, रूइंड हो गई थी. विद द ब्रिटिश रूल न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ था. यानी न्यू लॉज और रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने स्टार्ट किया था. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन्स यानी ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में क्यों आए थे? ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए आए थे,
ट्रेड करके हमारे यहाँ की वेल्थ को ड्रेन करके अपने ब्रिटेन में ले जाना। आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। Several legacy of the past reflect in modern period. The British administration policy system, law, parliamentary system, rule of the law, Indian judiciary, panel code stated to take the shape during the British rule. अब हम बात करते हैं, अभी हमने चेंजेस की बात कर ली। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एराइज होता है कि इससे क्या हुआ था। इससे हमारे यहाँ न्यू रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्मर्स स्टार्ट हुए थे, यानी न्यू रिफॉर्मर्स बने थे, क्योंकि वो इनकी एक्सप्लॉटेशन से हमारे इंडियन लीडर्स का, हमारे कॉमन मैन का पेशेंस ख़त्म होने जा रहा था, ख़त्म हो गया था एकदम से। दे वर फीलिंग वेरी हैक्टिक, दे डोंट वांट टू रूल ब्रिटिश एनी मोर इन इंडिया। सो उसके बाद क्या हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि क्या सोर्सेज है, व्हाट आर द सोर्सेज थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट दिस चेंजेस। तो सोर्सेज क्या हैं, जो रिकॉर्ड सर्वे रखे गए थे, क्वाइंस रखे गए थे, प्रेस और हमारे क्या थे, न्यूज़पेपर्स। इन चीज़ों से हमें क्या हुआ था, इंफॉर्मेशन मिली थी। अब हम बात करते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कॉइन्स। ये देखिए कॉइन्स में यहाँ मेंशन है, coins are the sources of information regarding various rulers. These provide us information regarding the economic condition of people. The British East India Company started minting coins from the mid-17th century. In 1717, the British obtained the right to introduce their own rupee in the name of the Mughal emperor. इसमें क्या मेंशन है, जो कॉइन्स पहले के होते थे उसमें जो उस समय एम्परर रूल कर रहे होते थे उनके पिक्चर्स लगे होते थे, इससे ये पता चलता था हाँ इस टाइम भाई ये रूल कर रहे हैं। तो उस समय ब्रिटिशर्स को अलाउ हो गया था कि वो मुग़ल एम्पायर के नेम पे अपने कॉइन्स को चला सकें। बाकी यहाँ पे देखिए प्रेस एंड न्यूज़पेपर। प्रेस और न्यूज़पेपर ने उस टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 100 ऑफ न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड, कम से कम 100 न्यूज़पेपर पब्लिश हुए थे, बोथ आर इन इंग्लिश एज वेल एज इन आवर रीजनल लैंग्वेजेस। यहाँ पॉइंट देखिए, इन 1876 देयर आर 62 वर्नेकुलर न्यूज़पेपर इन बॉम्बे। 62 वर्नेकुलर न्यूज़पेपर थे बॉम्बे में। हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं यहाँ पे। द टाइम्स ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1861, द पायनियर फाउंडेड इन लाहौर इन 1877, The Tribune started in Lahore in 1877. The Bengali founded in 1862 by Surendranath Banerjee. The Amrita Bazar Patrika founded in 1868 by Shishir Kumar Ghosh. फिर है these different newspapers give a lot information about the British rule of India. ये सब न्यूज़पेपर, सर्वेज, रिकॉर्ड, इसमें हमें इंफॉर्मेशन दिया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोग एक प्रैक्टिस नोटबुक बनाएंगे। प्रैक्टिस नोटबुक में जो भी ऑनलाइन क्लास में अटेंड करते हैं उसके रिगार्डिंग एक समरी लिखेंगे और क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे और उसका आंसर आप देंगे। जब भी हम क्लास लेंगे तो हम आपको उसके साथ डिस्कशन ज़रूर करेंगे और चेकआउट ज़रूर करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया सेट टू बी स्टार्टेड इन कौन सी सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था? रिमेंबर, इन 19th सेंचुरी। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? इंडिया टाइम्स था, अमृत बाज़ार पत्रिका था, या द हिंदू था, या केसरी था? इंडिया टाइम्स था। द नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया कहाँ पे था? नेशनल आर्चिव फ्रॉम बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली। अब ये सब क्वेश्चंस को आप टिक मार्क करेंगे। उससे इम्पॉर्टेंट हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको आप नोट कीजिएगा। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? आप नोट कीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, इन हाउ मैनी पीरियड आवर हिस्ट्री इज डिवाइडेड? आंसर इज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आई थिंक ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Till then, revise it, listen it and make notes about this chapter. Thank you, class.